नेटवर्क तो नेटवर्क प्रॉब्लम है सर थोड़ा सा। अच्छा अच्छा, अब इसका कोई मतलब इस एक डिप्लोमेटिक जवाब हो गया कि है ना, नेटवर्क इशू, इसका तो कोई मालिक नहीं है। हो गया यस। ऐसा, भगवान भरोसे हो गया फिर। Okay, now I'm starting. So in the last class, we were talking about matter wave. Yes, sir. So before coming to this concept, इससे पहले हम लोग लाइट को ऐसा डुअल नेचर प्रूफ करने की कोशिश किए थे। लाइट में पार्टिकल नेचर होता है, लाइट में वेव नेचर होता है, एंड इन ऑर्डर टू प्रूव लाइट हैज पार्टिकल नेचर वी हैव कैलकुलेटेड मास एंड मोमेंटम, और उसको ऐसा वेव प्रूफ करने के लिए हमने उसका फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे डिस्कशन किया था, और छोटे मोटे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से उसको प्रूफ करने की कोशिश किए थे। सो इन आवर डेली लाइफ व्हाटएवर लाइट वी आर यूजिंग, we can calculate the mass and momentum of the photon emitted through that light. उस लाइट से जो भी फोटॉन्स हमें मिल रहा है उस फोटॉन्स का हम वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। सो एक सिंपल से इंटरेस्ट का टर्म है, अपने आसपास में जो भी लाइट सोर्स को दिखता है, एक गूगल करिए, उसका वेवलेंथ कैलकुलेट कर वेवलेंथ फाइंड करने की कोशिश करिए, और यदि वेवलेंथ मिलता है तो उस वेवलेंथ के जरिए से आप उससे निकलने वाले फोटॉन्स का मास और मोमेंटम कैलकुलेट करने की कोशिश, क्योंकि मैक्सिमम वेव तो सभी एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन पार्टिकल एक्सेप्ट करने के लिए उसका मास और मोमेंटम होना जरूरी है। तो हमारे पास एक ब्रिज इक्वेशन से हमने शुरुआत किया था। सो वन ब्रिज इक्वेशन we have taken, and that was the relation of momentum with wavelength. So P is equal to h upon lambda. This is that the momentum of that photon. So this is momentum of photon. So momentum of photon. This is P is equal to h upon lambda, और इसको ड्राइव करने के लिए हमने कोई बहुत बड़ा मशक्कत नहीं किया था। फर्स्ट हमने कैलकुलेट किया था मास के कैलकुलेशन के लिए हमारे पास दो रिलेशन था, E is equal to h nu and E is equal to mc square. When we compare these two, we have this mass is equal to h nu by c square. This was a simple relation, and इसके बाद फिर मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए we have this P is equal to mass multiplied by c, mass multiplied by velocity, and here we are taking photon, so the speed of photon is c. So we will use mass multiplied by c, and by putting this is h nu by c square multiplied by c, x cancel करते हैं, so this is h nu by c, and this frequency nu is equal to c by lambda. We have this fundamental relation जो हम several wave theories में use करते हैं। तो this is equal to h upon lambda. तो ये जो रिलेशन है मोमेंटम का, this p is equal to h upon lambda, उसको हमने इस सीक्वेंस से ड्राइव करने की कोशिश किए थे, ड्राइव किया था। So this relation, this is known as the bridge equation. Bridge equation why? Because the left hand side is shows particle nature. ये particle nature show करता है, momentum is the characteristic of a particle, and this wavelength, this is the characteristics of wave. So left hand side shows the characteristic of particle, and right hand side shows the characteristics of wave. That's why this equation P is equal to h upon lambda with this equivalent sign. This is double line. So this is known as the bridge equation, because this is the bridge between wave and particle nature of light. So this is the reason why this equation is known as bridge equation, because this actually gives this actually joined the particle and the wave nature of it. इसी particular equation को de Broglie ने use किया in about 1926-27, and in another form this lambda was taken as equivalent to, so this is equivalent to, one can write this lambda is equivalent to h upon p. So left hand side is lambda and p is momentum, and for photon
initially we have taken this momentum P is equal to mass multiplied by C. When this C is replaced by V, then this P is equal to mass multiplied by Siddharth. सर आपने क्या तो मैं मिटा दिया सर, मैं ऐसे नोट अच्छा, मैं मिटा दिया, इसको नोट कर रहे थे तो बताना Yes, चाहिए था। हाँ, थोड़ा फास्ट करो ना, मैं तो जस्ट एक ओवरव्यू कर रहा था। फिर से अच्छा, उसको सर, ड्राइव ठीक है, करनी सर। है? नहीं, फिर से ड्राइव हाँ। करने मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, 4 लाइन का कैलकुलेशन होता है। सर रिकॉर्डिंग से देख लेंगे। मैं ऐसे, हाँ, रिकॉर्डिंग मैं भेज दूंगा, है ना, रिकॉर्डिंग से उसको देख लेंगे। हाँ सर, ठीक है। photon P is equal to mass multiplied by C, and when the C is replaced by V, C is corresponding to the speed of photon, the speed of light, और अगर हम इस C को V से रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास इस मोमेंटम में आ जाता है P is equal to mass and V, and this is for matter. So in order to give the equation for this matter wave, this C is replaced by V by de Broglie's, and given as the Broglie's wavelength lambda is equal to h upon P, that is h multiplied by a multiplied by 3. So what are the statement given by de Broglie is, सिर्फ हम लाइट के बारे में ये कहें कि लाइट में ड्वेल नेचर होता है, दिस इज पार्शियली ट्रू, लाइट में तो ड्वेल नेचर होता ही है। साथ ही साथ हर मूविंग ऑब्जेक्ट, रीजन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि ऑब्जेक्ट मोशन में रहना चाहिए, सो हर मूविंग ऑब्जेक्ट विल शो ड्वेल नेचर। हर ऑब्जेक्ट जो है जो कि मोशन में है वो ड्वेल नेचर शो करेगा। सो लेट्स हैव, दिस इज one body of mass m, it is moving with velocity v, so momentum p is equal to m multiplied by v. This is the momentum, and this is moving, so this will show dwell nature, and this associated wave is known as matter wave. So if any particular object it is in motion, then this will associated with a wave, and that associated wave is known as matter wave. अब चलिए फिर से बात आती है कि भाई हम इसको विजुलाइज कैसे करें, कैसे सोचें, क्योंकि मैंने जब इंट्रोडक्शन दे रहा था क्वांटम फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स, रिलेटिविस्टिक फिजिक्स, तो एक चीज मैंने एम्फेसिस देके कहा था कि न्यूटोनियन फिजिक्स, रियल फिजिक्स है, उस चीज को हम इमेजिन कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पर जब मैटर वेव की बात आती है और अब हम क्वांटम फिजिक्स में धीरे धीरे जंप करने वाले हैं, कूदने वाले हैं, सो ये क्वांटम फिजिक्स के कंसेप्ट है कि हर ऑब्जेक्ट में अपने ड्वेल नेचर होता है, जस्ट सिमिलर टू लाइट। कंडीशन ये है कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में होना चाहिए। तो अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उनके साथ ये जो एसोसिएटेड वेव है, इस एसोसिएटेड वेव को मैटर वेव कहते हैं। अब विजुलाइज करने की बात आती है, उसको सोचना कैसे है। तो जब तुम लोगों ने मेरे ख्याल से जब कोई बहुत फास्ट बाइक वगैरह या एरोप्लेन वगैरह मूवमेंट करते हुए दिखाते हैं ना, तो उसके साथ एक वेव दिखाया जाता है। अगर तुमको इसको इमेजिन करना है तो दैट मैटर वेव इज लाइक दैट। या तुम लोगों ने वो शक्तिमान देखे हो ना, शक्तिमान या सुपरमैन टाइप से जो कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं या इस प्रकार के कैरेक्टर्स होते हैं जिनके पास सुपर पावर होते हैं, तो ऐसे सुपर पावर वाले कैरेक्टर्स में उसके साथ जब वो मोमेंट में आता है, मोशन में आता है, बहुत फास्ट मोशन में आता है, तो उनके साथ एसोसिएटेड वेव दिखाते हैं। दैट एसोसिएटेड वेव इज मैटर वेव। सो मैटर वेव इज एक्चुअली, let's write the definition of matter wave. So सर yes, सर वो so what is the matter wave? हाँ जी बोलो, देखिए जो मूविंग ऑब्जेक्ट रहता है वो वेव के फॉर्म में रहता है कि उसके साथ में कोई वेव वो कंप्लीटली वेव में कन्वर्ट नहीं होता, उसके साथ एसोसिएटेड वेव होता है ना, वो कंप्लीटली वेव में कन्वर्ट नहीं होता। इसीलिए तो ड्वेल नेचर कह रहे हैं ना। जब उसको अगर हम उसका वेव को हटा दें तो सिर्फ पार्टिकल रह जाता है, वेव को अगर पार्टिकल को छोड़ दें और सिर्फ वेव को ले तो वेव नेचर हो जाता है, इसलिए उसको ड्वेल नेचर कहा जाता है। ओके, चलिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस राइट वन सिंपल लाइन फॉर द मैटर वेव। सो de Broglie's matter wave, de Broglie's matter wave is a matter wave
is a wave associated with moving matter. So if any object, any matter is in motion, it is in moving nature. तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उनके साथ जो एसोसिएटेड वेव है, this associated wave is known as the Broglie matter wave or the Broglie wave or better wave. अब जब वेव है तो उसका वेवलेंथ बताना पड़ेगा and its wavelength is a wavelength which is known as, जो मैं लिख रहा हूँ वो बोल भी रहा हूँ, अगर किसी को थोड़ा बहुत देखने में तकलीफ हो रही हो जस्ट ध्यान से सुनना और उसको लिखते चले जाना. So first line is the Broglie matter wave is a wave associated with moving matter. अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके साथ एसोसिएटेड वेव को हम मैटर वेव कह रहे हैं. एंड the wavelength of which is known as the Broglie wavelength, of matter wave is lambda, that is equal to h upon p. Directly I am using the same relation which we have already used for as a bridge equation to interpret that photonic nature of light. So lambda is equal to h upon p. This यही same relation जो हमने फोटॉन के केस में ली. अब इस p को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करते हैं, where p is equal to mv. So one can write this lambda is equal to h upon mv. So this is the Broglie wavelength. Lambda is equal to h upon mv. छोटे-छोटे हम थोड़ा सा प्रॉब्लम करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन करना है ना, देखें हम कि ये किस प्रकार से हमें शो होता है, और थोड़े से बड़े ऑब्जेक्ट लेंगे और उसके बाद फिर साइज को छोटे करते चलेंगे. क्योंकि मैंने एक स्टेटमेंट और दिया है कि क्वांटम मैकेनिकल स्टडीज दैट इज द स्टडी ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटॉमिक सब एटॉमिक लेवल पार्टिकल्स. अगर बड़े पार्टिकल है तो हमें हमेशा पार्टिकल की तरह क्यों देखते हैं? बाइक चलाते हो, बाइक जो है वो सिर्फ पार्टिकल की तरह दिखता है, वेव की तरह क्यों नहीं दिखता? या ट्रेन में अगर बैठे हो, ट्रेन मोशन में है, फिर वो सिर्फ पार्टिकल की तरह दिख रहा है, वेव की तरह क्यों नहीं दिख रहा है? ये सारा का सारा जो है हम इससे छोटे छोटे कैलकुलेशन करके बता सकते हैं. यस सिद्धार्थ प्रसाद, आर यू देयर? यस सर. सिद्धार्थ, यस सर. यस सर. कौन सा बाइक चलाते हो? सर बाइक नहीं चलाता सर, स्कूटी चलाता हूँ सर. स्कूटी चलाते हो, उसका मास कितना होता है इंक्लूडिंग योरसेल्फ? सर क्या सर कभी क्या पता करने की कोशिश नहीं की सर, फिर भी सर अज्यूम करके बता सकता हूँ सर. चलिए एज्यूम कर लीजिए 100. तुम्हारा वेट कितना है? थोड़ा राउंड अप कर लेंगे, कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा. तुम कितने किलोग्राम के हो? सर मेरा मास 65 है सर, और फिर क्या बोलते हैं उसका मिला के 55. यस सर. सर 65 सर. 65. ओके. अपन ने स्कूटी का वेट कितना ले, किसी को पता है क्या स्कूटी का वेट? स्कूटी का वेट सर होगा 150 kg सर. एक्टिवा होगा तो 150 होता है. kg. बहुत भारी बता रहे तुम. एक्टिवा का वेट कौन होता है सर? 100 kg सर. 100 kg ले ले. 120 ले ले. एक्टिवा होगा तो 150 kg सर. यस सर. ओके चलिए. सो एक्टिवा मास ऑफ एक्टिवा प्लस व्हाट इज हिज नेम? सिद्धार्थ ना? Siddharth. Yes sir. Yes sir. Let's have is equal to 200 किलोग्राम. ओके. राउंड ऑफ कैलकुलेशन से थोड़ा सा इजी हो जाएगा. कितना स्पीड से गाड़ी चलाते हो? सर 50. कितना? 50. चलिए 50 ले लेते हैं ना. Moving with velocity, this is mass. Moving with velocity is equal to 50 kilometer per hour. So now calculate the wavelength of matter wave associated with Siddharth. चलिए जल्दी निकालिए. Excuse me सर, बोर्ड ढंग से थोड़ी विजिबल नहीं हो रही है सर. कैलकुलेट अपने नेटवर्क ठीक करो भाई. कैलकुलेट दी. सर स्टार्टिंग से नहीं हो रही है आज क्लियर. यस सर, सबको नहीं हो रहा है सर. बताया क्यों नहीं? मुझे तो अच्छा खासा दिख रहा है यहाँ से. सर नेटवर्क तो जबरदस्त है क्लियर. सर हमें नहीं दिख रहा. नेटवर्क आज अच्छा है सर. सर बोर्ड साइड कर रहा है. कितने लोग को नहीं दिख रहा है? मैक्सिमम लोग हैं. सर बीच में ब्लर हो जाता है सर, पूरा बीच ब्लर हो जा रहा है. हाँ? स्टार्टिंग से ही ब्लर है सर.
हाँ सर। चलिए मैं एक बार रिस्टार्ट करता हूँ, फिर देखते हैं। बताना चाहिए तुम लोग को स्टार्टिंग से। सर पोजीशन ठीक है सर, पोजीशन वाला तो Yes, sir. चलेगा सर। सर लीव कर दिए क्या? आ रहे हैं उधर। नहीं रिकॉर्ड है, हो दिख रहा नहीं रहा है तेरे को। ऑन है, बक बक मत करो, रिकॉर्डिंग ऑन है। नो नो। तो क्लियर हुआ? यहाँ तो नेटवर्क अच्छा खासा चल रहा है, अच्छा खासा यूट्यूब चल रहा था। इंटरनेट इज गुड। सर विजिबल है सर, पर पूरा Visible क्लियरली है? विजिबल नहीं है। ऐसा क्यों हुआ भाई आज? सर आज क्लियर नहीं है सर एकदम। लाइट का कुछ इश्यू हो? दिखा थोड़ा बहुत? यस सर। ठीक है यस सर। सर दिख रहा है। सर ठीक है। ठीक है सर, ठीक। सर ओके चलिए। सर अभी महेश सर की तरह डिजिटल बोर्ड में पढ़ाई करो ना सर प्लीज, उसमें अच्छा दिखता है। जिसको डिजिटल बोर्ड की प्रैक्टिस हो जाती है ना, वो लोग कर सकते हैं, है ना, उसके लिए हाथ चलाना पड़ता है। एंड बोर्ड जो रहता है ना वो, ओके सो कैलकुलेट द वेव ऑफ मेट्रो वेव एसोसिएटेड विद। आ गया आंसर। आ गया? चलिए कितना आ रहा है भाई सिद्धार्थ? लेंथ एंटीसिपेट इनटू कितना आ रहा है? सर 6.62 into 10 to the power minus 38 मीटर। 6.628 into 10 to the power minus 38 मीटर। और बाकी लोग चेक करो तो जल्दी से। यस सर, सही। सही है? यस सर। यस सर अब अच्छा है। ठीक है, so 6.628 into 10 to the power minus 38 meter. So 38 meter is a very small quantity. हम लेंथ के मेजरमेंट में तुम लोग को जब 11th क्लास में ना एक मेजरमेंट का रेंज बताया गया था कि मिनिमम में कितना मेजर कर सकते हैं। तो जब लेंथ की बात आती है तो हम 1 फर्मी तक मेजर कर सकते हैं। 1 फर्मी इज इक्वल टू हाउ मच? एक फर्मी कितना होता है? कितने मीटर एक फर्मी? 10 to the power minus 15. 10 to the power minus 15. गुड। So this is 10 to the power minus 15 meter. So minimum length का जो मेजरमेंट हम करते हैं वो 1 फर्मी तक कर सकते हैं, that is of the size of nucleus. ओके, तो यहाँ पर इसका जो वेवलेंथ जो एसोसिएटेड है वो 10 to the minus 38 के ऑर्डर पे आ रहा है। इसलिए सिद्धार्थ चाहे कितनी भी स्पीड बाइक चला ले वो हमेशा पार्टिकल की तरह दिखेगा, क्योंकि इससे एसोसिएटेड वेव का वेवलेंथ बहुत ही कम है। चलिए थोड़ा साइज को और छोटा करें। सर बस नोट कर लेते हैं सर प्लीज थोड़ा। नोट कर लो जल्दी। सर 6.65 है ना? 6.625। लिखो। अरे तुम कैलकुलेट करके रखो ना, उसमें किसी के कहने पे नहीं, तुम कैलकुलेशन करके देखो, यूज योर कैलकुलेटर, कैलकुलेशन करके देखो, जितना आता है वो डाटा वहां पे लिखो। सर एग्जाम में भी कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं? यस, यू कैन यूज कैलकुलेटर। या फिर तुमको अगर कोई कैलकुलेटर यूज करने की आदत नहीं तो अच्छी बात है, लेकिन उसको राउंड ऑफ करके कैलकुलेशन करने की आदत डालो। सिग्निफिकेंट डिजिट्स एंड राउंडिंग लेटर्स ये एग्जाम क्लास में पढ़ाया जाता है। हाँ तो सर ये 10 to the power minus 15 मीटर सर क्या लिखा हुआ है सर उसके सामने? दिस इज 1 फर्मी, जो मैक्सिमम है। मिनिमम जो मिनिमम लेंथ हम मेजर कर सकते हैं, है ना, मिनिमम मेजरेबल
measurable length, that is 1 per meter, so minus 15 meter. ये हम मेजर कर सकते हैं significantly. So यहाँ पर जो लेंथ आ रहा है, that is in the order of 10 minus 30, 10 minus 38 meter. So this is not measurable. That's why ये जो पर्सन है जो एक्टिवा में दौड़ रहा है 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, वो हमेशा पार्टिकल की तरह से होगा. चलिए अरिहंत, अरे भैया यस सर. क्रिकेट खेलते हो? यस सर, खेलते हैं ना. वेरी गुड. उसके जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल मैच में बॉल जो यूज किया जाता है उसका मास कितना होता है? सर क्रिकेट सबसे ज्यादा ऋषभ तिवारी खेलता है. चल भाई ऋषभ, सबसे ज्यादा क्रिकेट तू खेलता है, तेरा जी का टेस्ट करते हैं. जो इंटरनेशनल क्रिकेट में जो बॉल यूज किया जाता है उसका मास कितना होता है? मास ऑफ क्रिकेट बॉल यूज्ड इन इंटरनेशनल मैच 350 ग्राम होगा सर. तुम अप्रोक्सीमेट मत बताओ यार, एग्जैक्ट बताओ ना. हाँ सर, 500 ग्राम तक. 500 ग्राम तक ही होगा सर. क्या 350 ग्राम होगा सर. 180. नहीं, थोड़ा सा ज्यादा होता सर 200 ग्राम के आसपास रहता है शायद. है. नहीं, बिल्कुल नहीं. सर 800 ग्राम होगा सर. सर 200 ग्राम के आसपास रहता है. 150 से 200 के बीच में. सर केजी में रहता है. 500 के बीच सर में 650. 1200 ग्राम. चलिए तो मास मैं अप्रोक्सीमेटली लेता हूं n is equal to 350 ग्राम. सर लेट द मास बी एक्स. बोला ना सर. 436 या 437 ऐसा कुछ रहता है. एग्जैक्ट आई डोंट नो. मैं क्रिकेट 163.5 रहता है सर हाँ? एक्स मतलब एक्स ले लेते हैं. 163.5. 169. नहीं, ऐसे नहीं लेना. चलिए ओके. तो मास इज इक्वल टू 350 ग्राम, राउंड ऑफ ले लेते हैं. और मैक्सिमम स्पीड कितना फेंकता है जो भी बॉलर है? फास्ट बॉलर 140 किलोमीटर पर आवर. 145. तो एक अंतर 150. किलोमीटर पर आवर तो नॉट माइल्स. 130 किलोमीटर. सर मैक्सिमम सर 145. चलिए 145 150 सर. 150 किलोमीटर. मेरी जानकारी था. 1 पे 150 था भाई 1 kilometer per hour. Okay, so the velocity of that ball is ball thrown by first bowler is 150 kilometer per hour, and mass is 350 gram. This is in MKS system. This is in CGS. Remember this. Calculate the wavelength. वो मिला वो लड़का जो ढूंढवा रहा था डायरेक्टर से, वो मिला H2 का G2 का किसी तरह फर्स्ट ईयर में डाला था. तेरे पर्सनली भेजा था आपने? हाँ, उसको भी मैंने H2 का है करके डायरेक्टर से डाला था. चाहिए था सीटिंग वाला. नहीं, सीटिंग वाला नहीं, ये अलग से था. उसको ये नहीं मिला था कि डायरेक्टर से मैसेज किया था ना, उसको क्लास का इंफॉर्मेशन मिली. आंसर आ गया. इसके लिए मैं लिंक भेज दिए थे. इसका है करके ये वाला क्लास. ठीक है, उसका दूसरा मैसेज ये देखो, उसका फोन नंबर देखो. हाँ, कितना है? कितना आ रहा है? लेमडा तो एसोसिएटेड 1.35 मीटर. बार इज लेमडा इक्वल टू 1.26 into 10 to the power minus 35 meter. 26 into 10 to the power 35 meter. और किसी से
1.26 into 10⁻35 मीटर। मीन्स जब हम उस ऑब्जेक्ट का साइज जब हम कम करते जा रहे हैं, साइज को रिड्यूस कर रहे हैं, तो व्हेन बिग एक स्कूटी से लेकर के स्कूटी से स्टार्ट करके हमने ये किया और जब बाल तक पहुंचे हैं तो यहाँ पर उसका वेवलेंथ में इंडक्शन ये हुआ, एनहांसमेंट हुआ है, and that wavelength is 1.26 into 10⁻35 मीटर। दिस इज दैट वेवलेंथ। चलिए इसको थोड़ा सा रिड्यूस करें, इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ये सबसे आ रहा है 1.26 into 10⁻35 मीटर। यस सर। फास्ट करिए, है ना? आ गया। यस सर। ब्लाइंडली उतारना नहीं है, जब तक नहीं करोगे ना तब तक वो समझ में नहीं आएगा। चलिए इलेक्ट्रॉन ले लें, थोड़ा ज्यादा छोटा कर दें, एटॉमिक लेवल पे पहुंच जाए। So the mass of electron we know, third mass of electron कितना होता है? mass of electron कितना होता है? सर 1.6 into 10 power 1.6 into 10 to the power सर वो तो चार्ज होता है ना सर। 9.6 चार्ज होगा। Sir, 9.1 into 10 to the power minus 31. Okay, mass is equal to 91 kg। इसको थोड़ा सा देगा तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं तो इसकी वेलोसिटी अच्छी खासी बढ़ जाती है। तो लेट्स से दिस वेलोसिटी v, this is in order of 10⁶ मीटर पर सेकंड। ओके, थोड़ी सी अगर हमने, चूंकि बहुत टाइनी पार्टिकल है, थोड़ा सी अगर हम पोटेंशियल इसमें लगाते हैं तो एकदम फास्ट मूवमेंट करता है और सडनली उसकी वेलोसिटी 10⁶ 10⁻7 का पहुंच जाता है। सो लेट्स से इट्स वेलोसिटी इज 10⁶ मीटर पर सेकंड। नाउ कैलकुलेट द वेवलेंथ, द ब्रॉडली वेवलेंथ। कितना है? जस्ट यू हैव टू यूज द सेम फार्मूला ना, आई एम नॉट 7.2 into 10 to the power 10 meter। कितना होता है? 7.2 into 10 to the power minus 10 meter। So this is about 1.2 into 10 to the power minus 10 meter. Means this is in the range of angstrom। 7.2। So 7.2 आ रहा है, 7.2। अच्छा 7.2, ओके। यस सर, यही है। Yes, sir. चलिए सर योगा के लिए वही उन्हीं से करवाना है। बताइए ऐसे किस तरह इस पे फोन लगा रहे थे आप, चल कर आए। चलो ठीक है, उसको साइन करवा देना, डायरेक्ट से साइन करवा लेना। वही जाएगा। मेरा पावर सेम नहीं आ रहा है, मेरा पावर अलग है। क्या मेरा 10 to the power minus 4 आ रहा है। एडिट है, उसको ग्रुप में मैसेज कर दो, ऑलरेडी एडिट कर सकते हैं। सब अपडेट यहाँ पे मेरा 9 आ रहा है। हां कितना हो रहा है? देखो कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा हूं भाई, आपस में तुम ही लोग कर रहे हो, है ना? और डाटा थोड़ा बहुत या तो तुम्हारे 7.28 into 10 to the power minus 10 मीटर। -10 में आ रहा है। उसके बाद फिर तुम लोग बहुमत देख लो किसका ज्यादा आ रहा है। दैट इज इन द ऑर्डर ऑफ, ये 10 से -10 दिस फिक्स, ये तो आता ही है। उसके सामने का जो डिजिट है वो कितना होगा ये तुमको देखना पड़ेगा। 7.2 भी सही है। 7.2 is also okay। So ये 7.2 एंगस्ट्रॉम ये मेजरेबल रेंज के आ गया, है ना? तो हमने देखो 3 हम एग्जांपल लिए। पहला हमने बड़ा सा एग्जांपल लिया, वो पार्टिकल नेचर शो कर रहा है। सेकंड हम थोड़ा उसको छोटा के बाल तक लिया है, उसका वेवलेंथ बढ़ा। जब हम उसको एटॉमिक सब एटॉमिक लेवल तक ले आए तो वेवलेंथ जो है वो एंगस्ट्रॉम के रेंज में चला गया, जो कि मेजरेबल है। कहने का अर्थ ये है कि हम ऑब्जेक्ट को एटॉमिक सब एटॉमिक लेवल पे ले आते हैं तो वो ड्वेल नेचर शो करने लगता है। यहाँ पर वेवलेंथ मेजरेबल रेंज पे आ गया। Okay, that's why this quantum physics or de Broglie's concept, this is applicable to atomic subatomic level particles। बड़े पार्टिकल के लिए हम यूज कर सकते हैं, लेकिन ड्यूअल नेचर शो करता है, लेकिन वो पार्टिकल नेचर ही दिखाएगा क्योंकि उससे एसोसिएटेड मैटर का वेवलेंथ बहुत ही कम होता है। ओके,
ये अभी तक ये कैलकुलेशन का थीम ये। नाउ थोड़ा सा उस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, तो इन डिफरेंट फॉर्म यू कैन हैव डिफरेंट एक्सप्रेशंस। ये तुम लोगों ने 12th क्लास में भी किया होगा। सो स्टार्टिंग फ्रॉम दैट इक्वेशन, the Broglie's wavelength lambda is equal to h upon p। मैं इस रिलेशन से शुरू करता हूं, एंड here p is equal to momentum। 11th क्लास में तुम लोग को मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन भी ड्राइव कराया गया होगा। This momentum p is equal to mass multiplied by v, and kinetic energy Ek is equal to half mv square। ये दोनों रिलेशन हमने 11th क्लास में किया है, बहुत अच्छे से ड्राइव किया। जब इन दोनों को कोरिलेट कराया जाता है, then this p it is equal to root of 2m ek। ये रिलेशन तुम लोगों ने ड्राइव किया था, याद आ रहा है? तो इसे कर सकते हो ना? यस सर, याद आ रहा है। Yes, sir. This Yes, is sir. P is equal to mv and ek is equal to half mv square। So E और P के बीच में रिलेशन क्या रहता है? This ek is written as equal to p square by 2m। इसको दोनों को कोरिलेट करेंगे, ये ek is equal to p square by 2m आता है। v को एलिमिनेट करना है, इसको v के लिए सॉल्व करना है, v के लिए सॉल्व करके यहाँ पे रख देंगे। So p is equal to 2 root of 2m ek। इस वैल्यू को वहाँ पे अगर कोई रख दे, then this lambda is equal to h upon root of 2m ek। This is one of the modified equation relation formula given by de Broglie। This is the relation between this wavelength and this kinetic energy। अब इस kinetic energy को different particle के लिए हम different रख सकते हैं। तो where this for a body of mass m moving with constant velocity v, then this ek it is equal to half mv square। So this S in turn lambda is equal to h upon root of 2m multiplied by ek की वैल्यू यहाँ से रख दो। So this is half mv square। And the same relation जो हमने अभी तक यूज किया है, तो so here this 2 can be cancelled। So lambda is equal to h upon mv। This is that relation we are using so far। अभी तक हम लोग इसे से कैलकुलेशन किया है। सेकंड, फॉर अ चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज q, ये मैकेनिकल बॉडी के लिए जो न्यूटोनियन फिजिक्स में हम यूज करते हैं मैकेनिकल बॉडी, उस मैकेनिकल बॉडी के लिए है। अगर कोई मैकेनिकल बॉडी है जिसका मास अगर m है, वेलोसिटी इज v, then this de Broglie's wavelength is calculated, is equal to h upon mv। and हमने तीन प्रॉब्लम इसी इक्वेशन को लेकर के सॉल्व किए, वो सबके सब मैकेनिकल बॉडीज के फॉर्म में। अब दूसरा, अगर बाय हम चार्ज पार्टिकल लेते हैं, जिससे चार्ज पार्टिकल में चार्ज वैल्यू q है एंड मूविंग इन अ पोटेंशियल डिफरेंस v, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में तुम लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा है। Then this ek, the kinetic energy can be written as equal to charge multiplied by v। Force is equal to charge multiplied by electric field intensity, and the kinetic energy or the energy that is equal to charge multiplied by potential। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, तो this so therefore de Broglie's wavelength
Broglie wavelength lambda is equal to h upon root of 2m. काइनेटिक एनर्जी की जगह में हमें q भी लिखना है, तो दिस इज q मल्टीप्लाइड बाय v. मींस अगर आपको कोई चार्ज पार्टिकल दिया है, जो चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर मोशन में है, v की वैल्यू दिया गया है, तो you can calculate the wavelength of metal wave associated with that charge particle by using this formula. Lambda is equal to h upon root of 2m q multiplied by v. Next you are putting the value of kinetic energy there. जल्दी ये करो, फिर तीसरा और छोटा सा बच गया है, फिर आई थिंक वी कैन कंक्लूड सेशन. Should I proceed? हो गया यहाँ तक? Yes sir. Yes sir. Okay. So ये दूसरा और थर्ड है. A gas molecule or atom, gas molecule moving in a constant temperature T. Temperature T Kelvin. I am using Kelvin here. So a gas molecule है जिसका mass m है and moving in a temperature, a gas molecule of mass m moving in a constant temperature T Kelvin, then the kinetic energy, its kinetic energy Ek, it is given by Boltzmann, and that is equivalent to 3 by 2 kT. तुम लोगों ने पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, जब गैस इक्वेशंस वगैरह पढ़ाते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बात की जाती है, तो एनर्जी और टेम्परेचर को कोरिलेट किया जाता है. दिस इज दैट काइनेटिक एनर्जी कोरिलेटेड विद टेम्परेचर डिपेंडिंग ऑन मोनोएटॉमिक गैस, डायटोमिक गैस, ट्राइएटॉमिक गैस, पॉलीएटॉमिक गैस. तो तुम लोगों ने पढ़ा वो 1/2, 3/2, 5/2, 7/2 केमिस्ट्री पढ़ाते हैं. यहाँ पर एक जनरल इक्वेशन हम ले लेते हैं, दैट इज 3/2 kT जनरली यूज किया जाता है. एंड corresponding the Broglie wavelength lambda is equal to h upon root of 2m Ek. So Ek की जगह में मुझे ये वैल्यू पुट करनी है, तो दिस this lambda, it is equivalent to h upon root of 2m. Ek is 3/2 kT, so this is 3/2 kT, and 2 can be cancelled. So this is h upon root of 3m kT, where k is Boltzmann constant. Boltzmann's constant, whose value is k is equal to 1.38 into 10 power minus 23. It's 23. And its unit will be joule per Kelvin, Kelvin inverse. So depending on type of body, type of system under motion, we may have different form of that the Broglie's equation. First, for that rigid body, that Newtonian body of mass m moving with constant velocity v, we have to use lambda is equal to h upon mv. Second, for the charged particle moving in a constant potential difference v,
There we take that kinetic energy is equal to charge multiplied by potential difference Q multiplied by V. Then we have that de Broglie's wavelength lambda is equal to h upon root of 2mqv. We can also consider one gas molecule of mass m, which is moving in a constant temperature T, and that T is in Kelvin. Remember this. अगर ये सेंटीग्रेड में दिया गया हो तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने से पहले उनको तुम्हें केल्विन में कन्वर्ट करनी पड़ेगी. तो सेंटीग्रेड और केल्विन में क्या रिलेशन है ये तुमको पता है? एनीवन? तुमको सेंटीग्रेड और केल्विन में रिलेशन मालूम हो? +232. क्या? +232. 270 273. यस. सो सेंटीग्रेड में अगर दिया गया हो तो उसमें 273 तक ऐड करोगे तो जाकर के तुमको वो केल्विन में मिलेगा. तो पहले तुमको केल्विन में कन्वर्ट करना है, देन यू हैव टू यूज. और मास जो दिया रहेगा, जनरली अगर गैस मॉलिक्यूल की हम बात करें, मॉलिक्यूलर मास वगैरह दिया रहेगा, जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का अगर कोई मास अगर कोई दिया जाता है तो यू कैन कैलकुलेट दैट मास ऑफ वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. रूम टेम्परेचर को तुमको केल्विन में कन्वर्ट करना है और उससे एसोसिएटेड मैटर वेव का वेवलेंथ निकाल सकते हैं. ओके, सो दो छोटे-छोटे प्रॉब्लम हम डिस्कस कर सकते हैं. मैं जस्ट यहां पे दे रहा हूं, यू हैव टू सॉल्व. फर्स्ट सेकंड इक्वेशन को लेकर के आप ये जो कॉपर वायर है उसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन को लेकर के चले, वोल्टेज की वैल्यू 220 वोल्ट ले लें. सेकंड इक्वेशन के लिए one electron moving in a potential difference V is equal to 220 volts. जो कॉपर वायर एकदम प्योरली मेटालिक वायर है, उसमें हम मानते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को कोई डिस्टरबेंस ना हो, ठीक है, उसमें ड्रिफ्टलेस कंसेप्ट आता है, लेकिन अगर उसमें कोई डिस्टरबेंस ना हो तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पर अगर 220 वोल्ट का अगर पोटेंशियल लगता है तो उससे एसोसिएटेड विद कैलकुलेट डी ब्रोगलीस, मैं यहाँ ऊपर में लिख दे रहता हूँ, कैलकुलेट डी ब्रोगलीस wavelength for first one electron moving in a potential difference V is equal to 220 volts, and second gas oxygen molecule, one oxygen molecule moving freely, moving in your room, अब अपना रूम टेम्परेचर मेजर कर लेना. जनरली रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड लेके चलते हैं. एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दिया गया है ना, उसका तुम्हें उससे एसोसिएटेड मैटर वेव का अगर जस्ट डेली लाइफ में जो चीज हम आसपास यूज कर रहे हैं हम उसी को एज एन एग्जांपल लेके चल रहे हैं, उससे एसोसिएटेड मैटर वेव का वेवलेंथ कितना होगा. एंड दिस इज ऑफ 5 पॉइंट. This is also 5 point. ये असाइनमेंट कॉपी में करना है. Yes, इसको वही जैसे मैं कभी गूगल क्लास में इसको मैं लिख दूंगा, है ना. 10 पॉइंट का क्वेश्चन है and you have to submit this and the time is about कितने बजे तक का टाइम दे दें? सर 3 बजे तक. 3 बजे तक का, चलिए 3 बजे तक का टाइम मैं मेंशन कर दूंगा, है ना. लेकिन ध्यान में ये रहे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का तुमको वेट मास कैलकुलेट करना पड़ेगा. अब उसके लिए कितना ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है ये निकालना पड़ेगा. 32 64 जितना लेना है और उसको 1 AMU it is equal to 1.67 into 10⁻⁻27 kg. ये एक AMU की वैल्यू होती है ना. तो केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत किए होंगे मेरे ख्याल से, इसमें और ज्यादा हिंट की जरूरत नहीं. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का वेट निकाल सकते हैं ना. O2 का वेट कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट, है ना. उसको इतने से मल्टीप्लाई कर देना तो वो किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा या ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा. अब किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया. यस सर. टेंपरेचर तुम्हारा रूम टेंपरेचर 27 ले लेना, है ना. T is equal to 27. So T is equal to 27 डिग्री सेंटीग्रेड. ये सेंटीग्रेड में उसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेना और पुट करके देखना. क्वेश्चन क्या प्लैंक कांस्टेंट कौन सा? फर्स्ट मिस
First question is one electron moving in a potential difference of V is equal to 220 volts. ये कॉपर वायर में 220 वोल्ट सप्लाई देते हैं ना, उसी से रिलेटेड है ये। सर अटेंडेंस ले लीजिए। अटेंडेंस तो तुम्हारे असाइनमेंट के साथ लेवाई जाता है ऐसे, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी रिकॉर्डेड है ना अटेंडेंस भी। सर तो लीव कर दे, टाइम हो गया है। एक मिनट सर सामने से हटिए ना, नोट कर रहे हैं। हाँ ठीक।